Yes, so friends, welcome back, and this time I'm giving you this part recorded. तो आप लोगों को recorded part मिलेगा. The first part was covered in the previous video, लेकिन वहाँ पे कुछ technical error के कारण वो stream रुक गई. So here we are again, और मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें वापस से recorded format में करवा दूंगा. But before we begin, I would like to tell you about Unacademy CA Champions. Unacademy CA Champion is basically a cashback program to motivate and celebrate your victory. So those students who got rank 1 से लेकर 10 तक का, they get 10x of their fees refunded. 11 से 50 वालों को मिलेगा 3x रिफंड, और साथ ही साथ बेटा 36 मंथ का फाइनल का सब्सक्रिप्शन. ये जो रिफंड रहेगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स. और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मार्क्स, 75 से ज़्यादा मार्क्स और 60 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो भी आपको रिडम्पशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाउचर. 60% मैक्सिमम रिडम्पशन है इस केस में. दिस इज़ द QR कोड बेटा विच यू कैन स्कैन, और QR कोड स्कैन करके यू कैन एनीवेज अवेल दिस ऑफर. ठीक है, तो हमने इतना पार्ट तो कवर कर लिया था. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कवर कर लिया था, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कवर कर लिया था. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग. बेटा रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? द अर्निंग विच इज रिटेन्ड. यू नो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकेंड. बेटा यू नो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट स्टार्ट्स विथ सेल्स. Profitability statement start with sales. Sales less variable cost gives us contribution. Contribution less fixed cost gives us EBIT. Contribution less fixed cost give EBIT. Less interest gives you EBT. Less tax gives you EAT. Less preference dividend give you net income. Net income divided by number of share gives you EPS. Now this EPS, or your entire net income earning available to equity shareholder, entire income is not distributed, but certain portion is held back, is plowed back, is retained to expand in the future. So for future expansion also, sometime company requires money, and that money they get in the form of internal accrual. That means the money which belongs to the shareholder but not paid to them. So retained earning, explain this term, plowing back of profit. What do you understand by internal cash accrual? By internal cash accrual मतलब कि भैया आपको अपनी retained earning ही मिल जाती है वापस से. ठीक है, पढ़ते हैं. लॉन्ग टर्म फंड में भी ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय अक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट. एग्जैक्टली आपको सारा का सारा पे आउट करने की जरूरत नहीं. यू कैन रिटेन सर्टन मनी. दिस इंक्रीजेस द नेटवर्थ. ऑफ कोर्स बेटा ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आपका नेटवर्थ इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीजेस द डेट बोरोइंग कैपेसिटी. वेन एवर योर नेटवर्थ इज मोर, ओनर्स फंड इज मोर इन्वेस्टेड इन द कंपनी. नाउ इवन द डेट प्रोवाइडर फील कॉन्फिडेंस एंड योर डेट बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. This is the form of internal cash accrual. That means you don't have to borrow from elsewhere. Public limited company must plow back a reasonable amount, keeping in the view legal requirement. This is old thing. This is not new one now. तो भैया पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रही है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड टू प्लाउ बैक द प्रॉफिट. गॉट माई पॉइंट? Okay. So very simple, internal cash accrual. Did you get this point? It is accumulating the profit. This increases the net worth of the company. Debt borrowing capacity increase होता है. Internal accrual it is called as, and there is no legal requirement as such. And there is legal requirement as such, but now it is not there. अब ऐसा नहीं है. We'll move further. Salient features of term loan. Term loan आपको पता है बेटा. This is basically borrowing. This is basically debt. सो टर्म लोन इज इशूड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस. इसका कॉस्ट लो होता है. सर हाउ कम इट्स कॉस्ट इज लो? वी स्टडीड KD, कॉस्ट ऑफ डेट. सो KD इज ऑलवेज लेस देन KP, is always less than KE. So KE is highest, KP is moderate, while KD is the least.
सो लो कॉस्ट रहता है बट रिस्क अटैच्ड इज मोर. ऑल्सो इट इज टैक्स डिडक्टेबल. यू नो KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP divided by n, the whole divided by RV plus NP divided by 2, 1 minus tax. 1 minus tax ये बोल रहे हैं ना, this is tax deductible. Low administration cost. Interest rate depends upon credit rating. If your credit rating is higher, your interest rate will be lower. If your credit rating is lower, your interest rate will be higher. Can put nominee director. This is optional. This debt provider can put a condition that we want to place nominee director. बात समझ में आई आपको? सो ये सारे पॉइंट है. इसके अलावा एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज रिस्की. इट इज रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस. Got my point? Yes. Let's move ahead, beta. What are the features of debenture or financing a business through borrowing is cheaper than using equity? Yes, we know that the cost of debt KD is low. So the benefit or the feature of debenture is that low cost है. It is tax deductible. One more important point is बेटा ऑल्दो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क मोर है, पर कंट्रोल के अंदर कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं है. देर इज नो कंट्रोल डाइल्यूशन. ऑल्सो देर इज एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज वाई? बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन लिक्विडी. देन नो कंट्रोल डाइल्यूशन, टैक्स डिडक्टेबल है, लो कॉस्ट है. अभी हमने देखा लो कॉस्ट क्यों होता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक. हाँ, एक पॉइंट और रह गया, लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. इक्विटी के केस में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज हायर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड? बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड? बॉन्ड मीन्स लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी क्रिएटेड टू रेज फंड. इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म promissory note. So bond is fixed income security. So let's say if I invest in the bond of government of India, तो मेरे लिए तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो गई. आई एम गोइंग टू गेट फिक्स्ड इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो बॉन्ड इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी क्रिएटेड टू रेज द फंड. गॉट माई पॉइंट? टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखते हैं बेटा. कॉलेबल बॉन्ड. कॉलेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड रहता है जो मैच्योरिटी से पहले बुला लिया जा सकता है, रिडीम करवा दिया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी. While putable bond is the bond which can be redeemed before the maturity at the option of investor. So callable bond has a call option which give issuer यानी कि बेटा company the right to redeem the bond before maturity at predetermined price called as call price. Putable bond give investor a put option, that is right to sell the bond, right to redeem the bond बैक टू द कंपनी बिफोर मैच्योरिटी. क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? समझ में आया? तो दो टाइप के बॉन्ड बताए. बॉन्ड क्या है? लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट है. इट इज अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. नाउ नेक्स्ट इज बेटा मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड बेटा मसाला बॉन्ड जो है ना, बेसिकली ये डिनोट करने के लिए बताया गया है कि एक इंडियन ओरिजिन बॉन्ड है. इंडियन ओरिजिन बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मसाला बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो INR में, इंडियन रुपीस के अंदर फ्लोटेड है ओवरसीज.
मसाला वर्ड क्यों यहाँ पर रखा है, बस सिंबॉलिक वे में यूज़ किया है इसको, क्योंकि बताना चाहते थे ये कि ये बॉन्ड इंडिया को बिलोंग करता है. सो इट इज़ एन इंडियन नेम यूज फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर कैन सेल टू द इन्वेस्टर ओवरसीज. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर तो ठीक है, पर बेटा ये है रुपीज़ डिनोमिनेटेड. जनरली अगर मैं बाहर बॉन्ड इशू करता हूँ तो डॉलर्स में करता हूँ, पर ये रुपी डिनोमिनेटेड है. ठीक है. इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन INR. फर्स्ट इशू बाय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फॉर 2000 करोड़. तो 2000 करोड़ के INR बॉन्ड जो हमने इशू किए थे, इंडियन बोरोवर ने इशू किए थे ओवरसीज, उसे बोलते हैं मसाला बॉन्ड. गॉट माई पॉइंट. चलिए अगला वाला, म्युनिसिपल बॉन्ड. ऐसे ही एक दे रखा है बुक में इन्होंने, म्युनिसिपल बॉन्ड. म्युनिसिपल बॉन्ड इज यूज टू फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंक्रीजिंगली एविडेंट इन इंडिया. तो यहाँ पर क्या रहता है बेटा, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ रहती है वो क्या करती है बेटा, वो बॉन्ड इशू करती है. लोग इन बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है. और म्यूनसिपैलिटी का क्या फ़ायदा हो गया बेटा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक फ़ायदा ये हो गया कि उनको पैसा मिल जाता है. इन्वेस्टर का फ़ायदा, उन्हें एक ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने का मौका मिलता है जो उनको इंटरेस्ट भी देती है और अच्छी सिक्योरिटी भी देती है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं. लेकिन जो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड रहता है वो रहता है गवर्नमेंट बॉन्ड. इसको ट्रेजरी बिल या GSEC भी बोला जाता है. GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सो गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, दीज बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी स्टेट पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ये क्यों इशू किया जाता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन नीड ऑफ फंड. और इसके और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ये हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है. ठीक है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल बोलते हैं इसको, टी बिल्स भी बोला जाता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बोला जाता है, टी बिल्स भी बोला जाता है. गॉट माई पॉइंट. चलिए एक्सप्लेन ब्रिज फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. लेट्स से देयर इज अ कंपनी. ठीक है. नाउ दिस कंपनी इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग और गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट फंडिंग के लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट ग्रांट. तो बेटा इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है और इनको सैंक्शन लेटर आ चुका है, सैंक्शन लेटर. पर बेटा अभी भी डिसबर्समेंट जो है ना वो पेंडिंग है. यानी कि बेटा इनको पैसा अब तक आया नहीं है. सैंक्शन हो चुका है, वर्चुअली सर्टन है पैसा आएगा, पर अब तक आया नहीं है. नाउ दिस कंपनी कैन नॉट होल्ड द इन्वेस्टमेंट फर्दर. नाउ दिस कंपनी कैन नॉट होल्ड द फर्दर डेवलपमेंट. इन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया था, दे ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वर्क. पर बेटा इन्होंने काम चालू तो ज़रूर कर दिया था, दे स्टार्टेड देयर वर्क. अब इसको रोक नहीं सकते बीच में से. ऑलरेडी लेबर इज़ वर्किंग देयर, ऑलरेडी मटेरियल आ चुका है. और थोड़ा लेट करेंगे प्रोजेक्ट फिर रुक जाएगा, फिर स्टार्ट करने में तकलीफ जाएगी. बट द फंड इज़ नॉट अवेलेबल विद देम. और इसको रोकना मतलब बेटा आपका प्रोजेक्ट लेट तैयार होगा और आपका कैश फ्लोज लेट आएंगे. तो ये तो तकलीफ की बात हो गई. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल गो टू बैंक एंड दे विल शो बैंक दिस सैंक्शन लेटर. ये सैंक्शन लेटर के बेसिस पर बैंक इनको शॉर्ट टर्म लोन दे देगी. विथ अ ऑब्वियस कंडीशन कि जब यहाँ से इनके पास पैसा आ जाएगा तो वो पैसा उठा के बैंक को वापस कर दें. समझ रहे हो आप. तो बेटा ये सैंक्शन लेटर के भरोसे बैंक इनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देती है. जैसे ही सैंक्शन लेटर के बाद पैसा डिसबर्स होके कंपनी के पास आ जाता है, कंपनी ये पैसा वापस से बैंक को पे करके अपना लोन क्लोज कर लेती है. ठीक है. और इस तरीके से बेटा तीनों का फ़ायदा हो गया. कंपनी का फ़ायदा ये हो गया कि शॉर्ट टर्म में डिसबर्समेंट आ गई,
बैंक का ये फ़ायदा हो गया कि उसको इंटरेस्ट मिल गया, और इसने भी सैंक्शन करके दिया, इसका भी फ़ायदा हो गया, पेमेंट डिसबर्स हो गया, और काम भी कभी भी रुका नहीं। तो ये जो पूरे फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म डिसबर्समेंट जो पेंडिंग था उसे फाइनेंस करने के लिए बैंक ने जो शॉर्ट टर्म मेरे को मेजर दिया है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैप फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट। हाइपोथिकेशन अगेंस्ट मूवेबल एसेट, आपको सबसे पहले सैंक्शन लेटर भी देना पड़ता है और मूवेबल एसेट भी आपको प्लेज करने पड़ते हैं वहाँ पे। फिर बेटा हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑफ कोर्स देखिए बैंक आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। अब आपको ज़रूरत थी, आपका सैंक्शन लेटर अभी तक पेमेंट नहीं डिसबर्स कर पाया है, तो ऐसे समय बैंक जानता है आपकी मजबूरी है, दैट्स वाई बैंक इज गोइंग टू कॉस्ट हाई। रीपेड आउट वंस प्रोसीड इज रिसीव, तो जैसे ही पैसा आ जाएगा, सैंक्शन लेटर जब डिसबर्स हो जाएगा तो बेटा हम पे कर देंगे बैंक को। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वॉट आर द मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, काफ़ी बार पूछा गया है। तो बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट, इसको बोलते हैं वीसी। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब लॉन्ग टर्म रिस्की प्रोजेक्ट रहता है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज रिस्की, जिसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, फंड भी नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट रिस्की है, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, प्रोजेक्ट रिस्की है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास फंड भी नहीं है, बट बेटा पोटेंशियल सक्सेस का बहुत ह्यूज है। तो ऐसे समय जो बंदा पैसा लगाता है उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल भी नहीं रहता है, जहाँ पे उसके पास कोई प्रायर बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, बट ह्यूज सक्सेस का पोटेंशियल रहता है। सो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेफर टू फाइनेंसिंग अ हाई रिस्क वेंचर, वेंचर यानी प्रोजेक्ट, जो शार्क टैंक देखते हो ना वो वही है, प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर, जिसके पास फंड भी नहीं रहता, एक्सपीरियंस भी नहीं रहता। वीसी मेक इन्वेस्टमेंट टू परचेज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी ऑफ हाईली रिस्क वेंचर विद पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, बट पोटेंशियल होना चाहिए। आप शार्क टैंक देखिए बेटा, उसमें बार बार बोलते हैं हमें आपके बिजनेस में पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है, या फिर हमें आपके बिजनेस में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, दैट्स द थिंग। बात समझ में आई आपको? अब पढ़ लेते बेटा मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। मेथड बेटा बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला है वो इक्विटी मांग सकते हैं आपसे, जनरली इक्विटी मांगते हैं, डज नॉट एक्सीड 49%, नहीं तो उनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चला जाएगा। सो मैक्सिमम इक्विटी विच वेंचर कैपिटलिस्ट कैन आस्क इज ऑफ 49%. नाउ देयर इज अ कंडीशनल लोन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लोन, दिस इज कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन क्या बोलता है कि भैया आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं, आप 2 से लेकर 15% की रॉयल्टी पे करो। ना व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब जितना आपका प्रोडक्शन होगा, जितना आपका सेल होगा, उसके बेसिस पर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू आपको पे करना पड़ता। यहाँ पर 2 से लेकर 15% तक जब आप अर्न करोगे तब आप हमें दीजिएगा, इसे बोलते हैं कंडीशनल लोन। फिर एक होता है बेटा इनकम नोट। इनकम नोट में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और साथ ही साथ रॉयल्टी भी पे करना पड़ता है। तो कन्वेंशनल लोन और कंडीशनल लोन का हाइब्रिड मिक्सचर है। फीचर ऑफ बोथ कन्वेंशनल लोन, कन्वेंशनल लोन का मतलब क्या होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, एंड कंडीशनल लोन, कंडीशनल लोन मतलब रॉयल्टी, अभी ऊपर देखा। नेक्स्ट है बेटा पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। डिबेंचर ले लो, मतलब हमें तुम्हारे में इन्वेस्ट करना है पर इक्विटी नहीं चाहिए, डिबेंचर। तो डिबेंचर में इनिशियली नो इंटरेस्ट रहता है, बाद में लो इंटरेस्ट रहता है, बाद में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, नो लो हाई। तो 4 तरीके हैं। सबसे पहला इक्विटी, देन इनकम नोट, कंडीशनल नोट और कंडीशनल लोन और पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। देख लीजिए आप। ठीक है, नाउ डिस्कस द फैक्टर दैट अ वेंचर कैपिटलिस्ट शुड कंसिडर बिफोर फाइनेंसिंग एनी रिस्की प्रोजेक्ट। तो बेटा ये जो शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा ये सारे पॉइंट्स भी देखते थे।
एक वेंचर कैपिटलिस्ट को ये सारे पॉइंट देखने चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम, वो हमेशा पूछते थे, देखना शार्क टैंक में भी, कि आपकी टीम में कौन कौन है, सीईओ कौन है, सीओ कौन है, सीटीओ कौन है, एमडी कौन है, कौन एग्जैक्टली क्या रोल प्ले कर रहा है। तो बेटा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम, क्या क्वालिटी है इस टीम की। टेक्निकल एबिलिटी ऑफ द टीम, ऐसा नहीं है कि बेटा आप टेक्निकल डिवाइसेस बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हो और आपकी बिल्कुल उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, क्या ये प्रोडक्ट टिक पाएगा। रिस्क कितना है इसके अंदर, रिस्क इन्वॉल्व हमको देखना पड़ेगा, रिस्क इन्वॉल्व देखना पड़ेगा। मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चल भी पाएगा। कैपेसिटी टू बियर रिस्क और लॉस, बेटा इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट को एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, तो क्या हम ये लॉस बेयर कर सकते हैं। हाँ, तभी डालो। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट में जिगरा नहीं है तो बेटा उसने डालना नहीं चाहिए पैसा। नेक्स्ट है बेटा एग्जिट रूट, एग्जिस्ट नहीं, एग्जिट रूट्स। एग्जिट रूट का मतलब क्या होता है कि भैया हम किस तरीके से इसमें निकल पाएंगे, हम यहाँ से आउट कैसे मार पाएंगे। नेक्स्ट है प्लेस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑफ कोर्स जब आप इसके अंदर इक्विटी अक्वायर कर लेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में कवर करवाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे बोला था ये एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता ही आता है ये। बट द पॉइंट इज कि बहुत बड़ा है, वास्ट है 2 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे हम हमारे चार्ट से, ठीक है। वी विल कवर इट फ्रॉम चार्ट इटसेल्फ। तो आप लोगों को अपने चार्ट ओपन करने हैं। चैप्टर नंबर 5 जैसे ही आप 4 ओपन करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें पेज नंबर 2 पे आपको दिख जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। यहाँ से हम शुरू करेंगे। बड़ा ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से समझना है आपको, समझने के लिए क्लास हो रही है, पूरा याद करने के हिसाब से आप मत करिएगा। तो जेल पेन लाया है। हाय खुशी बेटा। क्लास तो होनी ही थी, आज आपकी ये क्लास हुई है बेटा, और बची हुई क्लास कल दोपहर में भी हो जाएगी। यानी आप लोगों का ये इंटरनेशनल ट्रेड कल मैं खत्म कर दूंगा, इको पूरा खत्म। आज मैंने कॉस्टिंग भी पूरा खत्म कर दिया है, कॉस्टिंग की बस थियरी पार्ट है, वो देखना बाकी है। अच्छा, वॉइस अब बताना मुझे, वॉइस क्लियर हो गई है क्या। लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना, आपको समझ के लेना है बेटा इन चीज़ों को। अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ये नेक्स्ट यूनिट है बेटा, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिट है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, सबसे पहला सवाल मेरे मन में आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब वो सारी पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड्स ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को या तो प्रमोट किया जा सकता है या तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जनरली एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो ट्रेड पॉलिसी एनकम्पसेस ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट which are made by the government, which are imposed by the government to promote or to restrict import and export। बेटा देखिए, इंपोर्ट को प्रमोट भी किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो ट्रेड पॉलिसी एनकम्पसेस ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट which are beneficial, which are used by the government to import, to restrict or to promote import and export। अब वॉइस बताइएगा मुझे, अब सही है। नेक्स्ट बेटा, बेटा ये जो ट्रेड पॉलिसीज बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, जरा आप सोचिए बेटा। ट्रेड पॉलिसी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। फ्री ट्रेड हो सके बिटवीन नेशन, ठीक है, सभी नेशन अपने आप को ओपन कर दें। बेटा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो हमने देखे थे गैट और WTO में, वो स्ट्रेंथन हो सके। और लास्टली बेटा इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज।
सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव देखेंगे ट्रेड पॉलिसी का, तो उसका टिपिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि रिस्ट्रिक्ट करना है इंपोर्ट को और बेटा एनकरेज करना है एक्सपोर्ट को। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे फ्री ट्रेड, फिर बेटा इंटरनल मार्केट ओपन करवाना, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स है गैट और डब्ल्यूटीओ के, उसको प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, और लास्टली बेटा देश और दुनिया के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। सिंपल है एकदम, ये कोई टफनेस है ही नहीं इसमें। गॉट माई पॉइंट? सो ये याद हो गया बेटा आप लोगों को? फटाफट देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी एनकम्पसेस ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट और टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्ट्रिक्ट करना इंपोर्ट को और प्रमोट करना एक्सपोर्ट को। इसके अलावा फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को स्ट्रेंथन करना, इंटरनल मार्केट ओपन करना, और बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन नेशन बढ़ाना। अब बात करते बेटा टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज की। टैरिफ को ही कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी। बेटा टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को हम बोलते हैं टैरिफ। जनरली ना एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता, इंपोर्ट पे ही टैक्स लगता है। तो जनरली टैरिफ बोलो या कस्टम ड्यूटी बोलो, हम जनरल पार्लेंस में से इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेट कर पाते हैं। Tariff or custom duties are basically taxes or duties imposed on goods and services which are imported or exported। वैसे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगने वाली, इंटरनेशनल ट्रेड में लगने वाली ड्यूटी को बोला जाता है बेटा कस्टम ड्यूटी, पर जनरली इंपोर्ट पे ही लगती है। इट्स मेन गोल, बेटा क्या गोल होगा? ये जो टैरिफ है या फिर कस्टम ड्यूटी है, क्यों चार्ज करी जाती होगी? इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, इंपोर्ट को कॉस्टलियर बनाना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। Its main purpose is to raise the revenue for the government and to protect the domestic import competing industry। यानी बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वाला, इंपोर्ट को महंगा कर देना। दूसरा, गवर्नमेंट को पैसा भी तो आता है इससे। हाय ध्रुव, एनकम्पसेस मतलब इंक्लूड्स। ठीक है, सो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? टैरिफ एंड कस्टम। टैरिफ यानी कि कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? टैक्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और साथ ही साथ बेटा इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है? पहली बात, कंज्यूमर का वेलफेयर लॉस होता है, कंज्यूमर को गुड्स महंगे में मिलता है। दूसरी बात बेटा, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोलती है अरे अब तो हम इनएफिशिएंट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंपोर्ट सस्ते में भी हो रहा होगा ना तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी, गवर्नमेंट उसे महंगा कर देगी। तो बेटा डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाती है। साथ ही साथ बेटा कई बार क्या होता है, हमारे देश में गुड सस्ते में भी बन रहे होते हैं लेकिन इंपोर्टेड गुड महंगे होते हैं, तो हमारे देश वाले जानबूझ के गुड्स को महंगा कर देते हैं। तो तीन नुकसान है। पहली बात बेटा, कंज्यूमर का वेलफेयर लॉस होता है, उसको गुड्स महंगे मिलते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनएफिशिएंट बनती है। और तीसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्राइस भी हाइक कर देती है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन कौन से टाइप के टैरिफ होते हैं? टैरिफ के प्रकार बताइए। टैरिफ समझ गया ना आपको? टैरिफ मतलब वही बेटा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कौन कौन से प्रकार की होती है? सबसे पहली होती है स्पेसिफिक। बेटा स्पेसिफिक का मतलब होता है आपको फिक्स्ड ड्यूटी पे करनी, फिक्स्ड टैक्स पे करना है। मान लो मैं ये बॉटल, इंपोर्टेड बॉटल सुपीरियर क्वालिटी की 10,000 रुपए की बॉटल है, इस पे भी 100 रुपए टैक्स लगेगा।
और सस्ती 20 रुपए की बॉटल आ रही है उस पर भी 100 रुपए का टैक्स लगेगा। मतलब बेटा यहां पर प्रोडक्ट देखा जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाएगी। 10,000 का प्रोडक्ट है उस पर भी सेम टैक्स, सस्ता प्रोडक्ट है उस पर भी सेम टैक्स, महंगा प्रोडक्ट है उस पर भी सेम टैक्स। तो ये होती है स्पेसिफिक ड्यूटी। अब आप समझ ही गए होंगे तो गलत है। बेसिकली परसेंटेज ऑफ वैल्यू लगना चाहिए। 10,000 पे 10% 1,000 रुपए, 100 रुपए पे 10% 10 रुपए लगना चाहिए। तो बेटा स्पेसिफिक ड्यूटी जो भी है आप लोगों की वो ऑन वैल्यू लगती है, मतलब ऑन कमोडिटी लगती है। अगर आपकी बॉटल है उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, कुछ भी वैल्यू होने तो उस पर सेम ड्यूटी लगने वाली है। पर बेटा अगर एड वैल्यूरम आ गया, एड वैल्यूरम का मतलब होता है ऑन वैल्यू, जितनी वैल्यू उसका परसेंटेज। ये बेटर है, दिस वन इज बेटर। सो बेटा स्पेसिफिक टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ मतलब फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स पर फिजिकल यूनिट। फिर एड वैल्यूरम का मतलब होता है कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। अगर कमोडिटी 1000 की है तो उस पर 10% लगेगा 100 रुपए। अगर कमोडिटी 10,000 रुपए की है तो भी बेटा उसके ऊपर 10% लगेगा, दैट इज 1,000 रुपए। ये सही है ना, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरा है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब स्पेसिफिक और एड वैल्यूरम, स्पेसिफिक और एड वैल्यूरम विच एवर इज हाइयर। दोनों में से जो ज्यादा है वो, विच एवर इज हाइयर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ मतलब दोनों, स्पेसिफिक भी एड वैल्यूरम भी, एड वैल्यूरम प्लस स्पेसिफिक। समझ में? स्पेसिफिक मतलब प्रोडक्ट देखेंगे उस पर स्ट्रिक्ट अवे चार्ज कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। एड वैल्यूरम मतलब ऑन वैल्यू, मिक्स्ड का मतलब दोनों में से कोई एक, और कंपाउंड मतलब दोनों। अब नेक्स्ट है बेटा टेक्निकल। टेक्निकल मतलब हर कंपोनेंट पे अलग लगेगा। आप मोबाइल मंगवाएंगे उसके मदरबोर्ड पे अलग लगेगा, उसकी स्क्रीन पे अलग लगेगा, उसकी बैटरी पे अलग लगेगा, उसके केस पे अलग लगेगा, बेटा उसके कवर पे अलग लगेगा, अलग अलग रेट लगेगा। ये टेक्निकल टैरिफ है। ठीक है, टेक्निकल टैरिफ है। ऐसे क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूं। बेटा पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि हम एक पर्टिकुलर गुड इंपोर्ट करते हैं उस पर स्ट्रिक्ट अब एक सर्टन परसेंट टैक्स लग रहा है, लेट से 18% लग रहा है, 20% लग रहा है, 30% लग रहा है। तो जानबूझ के क्या करते थे, उसके अंदर महंगी कमोडिटीज जोड़ के बेचते थे। बेटा लेट से अगर आप चिप अलग से इंपोर्ट करते हो तो उसमें 100% टैक्स लगता था। ये लोग क्या करते थे, मोबाइल के अंदर ही चिप जोड़ के दे देते थे, चिप की वैल्यू जोड़ देते थे मोबाइल में, राइट। तो इससे क्या हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट को बोलते थे देखो तो हमने तो मोबाइल मंगवाया, अब इसमें चिप है तो हम क्या करें, है तो ये मोबाइल। तो बोलते थे हाँ तुम्हारी बात तो बराबर है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो बेटा मोबाइल पर 30% लगता था तो उसमें जुड़ी हुई चिप पर भी 30% लग जाता था। फिर बाद में समझ में आया कि इसका तो गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो चिप को यहां पर लेकर आते थे, चिप को अलग करते थे और बेटा मोबाइल को अलग कर देते थे। तो इस तरीके से गलत करा जा रहा था, तो इन्होंने हर कंपोनेंट पे अलग लगाना चालू करा, कैलकुलेटेड ऑन द कंपोनेंट ऑफ द इंपोर्टेड आइटम। नेक्स्ट है बेटा टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा मतलब क्या है, इनिशियल 1,000 क्वांटिटी इंपोर्ट करोगे या 1 लाख रुपए तक का इंपोर्ट करोगे तो इतना टाइम, 1 लाख से ऊपर थोड़ा और ज्यादा, 5 लाख के ऊपर और ज्यादा, 10 लाख के ऊपर और ज्यादा, यानी स्लैब वाइज। लो और नील रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एंड हायर रेट बियॉन्ड दैट लेवल। अब अभी भी होता है, अब तो होता ही है, मेनली टेक्निकल तो अभी होता ही है स्लैब वाइज। तो ये होता है टैरिफ रेट कोटा। नेक्स्ट है बेटा वेरिएबल टैरिफ। ये मस्त है, वेरिएबल टैरिफ मस्त है, सुनना बेटा। लेट से डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बनते हैं 100 रुपए के और मैं जो गुड इंपोर्ट करके ला रहा हूं वो मुझे पड़ रहा है 60 रुपए के। तो मैं क्या करूंगा, इस पे 40 रुपए ड्यूटी चार्ज करके इसको बराबर इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्राइस के बराबर ले आऊंगा। अगर वो गुड 70 में आ रहा होगा तो 30 रुपए चार्ज करूंगा, अगर वो गुड 50 आ रहा होगा तो 50 चार्ज करूंगा।
वो गुड अगर 80 का आ रहा होगा तो 20 चार्ज करूंगा, वो गुड 90 का आ रहा होगा तो 10 चार्ज करूंगा। कि बेटा आप लोगों का टैरिफ टैक्सेस वेरी करेगा, कितना वेरी करेगा, उतना कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्राइस से मैच कर जाए। टिपिकली फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू द डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। समझा बेटा? नेक्स्ट है एस्किलेटेड टैरिफ। बेटा एस्किलेटेड टैरिफ मैं आपको बता चुका हूं। एस्किलेटेड टैरिफ का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल पे कम लगेगा रेट, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस पे थोड़ा ज्यादा, और बेटा फिनिश गुड्स पे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेजर प्रोसेसिंग तो मेरे देश में ही होने वाला है, ठीक है, तो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है, लेबर एम्प्लॉयमेंट सब होने वाला है, आने दो रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस अगर कर रहा हूं बेटा, बहुत हद तक काम हो चुका है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स रेट लगा देते हैं, और फिनिश गुड्स आ रहा है मतलब मेरे देश में कुछ होने ही नहीं वाला है, मेरे देश को कुछ फायदा होने नहीं वाला है, चलो ज्यादा टैक्स लगा के ज्यादा ड्यूटी हासिल करके एटलीस्ट रेवेन्यू तो कलेक्ट कर ले। तो ड्यूटीज rates on raw material, semi-processed goods and final product are progressively higher. Duty rate on raw material, semi-processed यानी work in progress और final goods. बोलो यहां तक समझा? जी मैं चाहता हूं आप ना एक बार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, पहले 6 देख लो फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। मैं चार्ट से करवा रहा हूं। हो गया बेटा? चलिए प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ मतलब बेटा इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे कि मना नहीं करेंगे, गुड्स ला, पर तेरे पे इतना टैक्स लगाएंगे कि तो ऑटोमेटिकली बोलेगा बस करो भाई साहब नहीं मंगवाना मुझे। मतलब तेरा गुड्स आएंगे बेटा इंपोर्टेड 100 रुपए के, हम उस पर 200 रुपए का टैरिफ लगा के उसको 300 रुपए का कर देंगे। यहां पे is set so high that no imports will enter. Example 200 टका। प्रोहिबिटिव टैरिफ यानी कि बेटा ऐसा टैरिफ कि इंसान ऑटोमेटिकली खुद को प्रोहिबिट कर ले गुड्स मंगवाने से। यस नेक्स्ट है बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको समझ लेते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी को, एडीडी। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा आखिरकार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है बेटा? लेट्स से चाइना है और बेटा चाइना क्या कर रहा है, वहां पे ना गुड्स बना रहा है जिसकी आईएनआर में वैल्यू हो रही है 100 रुपीज आईएनआर में, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हो रही है 100 रुपीज। अब बेटा वो क्या कर रहा है, अपने गुड्स ना इंडिया में बेच रहा है 70 रुपए में, ठीक है। तो बेटा इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि वो अपना माल हमारे देश में जानबूझ के डंप कर रहा है।
सस्ते में बेच रहा है। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो चाहता है हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए बेटा, खत्म हो जाए पूरी तरीके से, और हम चाइना पे डिपेंडेंट हो। तो इसे बोला जाता है डंपिंग, और यही डंपिंग को रोकने के लिए एडीडी लगाया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब डंपिंग हो रही है ये पता कैसे चलता है? बहुत सिंपल है बेटा। लेट से चाइना गुड्स बेच रहा है 100 रुपए में, सॉरी चाइना गुड्स बनाता है 100 रुपए में, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। वो इंडिया में कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है 70, तो ये डंपिंग हो गई। अच्छा, डंपिंग का एक और प्रकार है बेटा। लेट से वो गुड 100 रुपए में बना के अपने मार्केट में 150 में बेचता है, और मेरे यहां बेटा वो 110 में बेच रहा है, तो ये भी डंपिंग आएगी। देखने वाले को तो ऐसा लगेगा भैया 100 का माल 110 में बेच रहा है, कोई डंपिंग नहीं हो रही है। पर आपको दोनों कंडीशन चेक करनी चाहिए। पहली, क्या वो कॉस्ट से भी कम बेच रहा है? अगर हां तो डंपिंग है। दूसरी, क्या वो अपने देश के डोमेस्टिक प्राइस से भी कम में बेच रहा है? हां, तो भी डंपिंग है। तो डंपिंग में दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं, राइट। तो चाइना करता है डंप, और यही डंपिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, 100 रुपए का तेरा गुड्स आया ना हमारे देश में 70 रुपए का, हम इस पे 80 रुपए और ड्यूटी लगा के इसको 150 का कर देंगे, तो तेरा कोई फायदा होने नहीं देंगे। हम ये 80 रुपए गवर्नमेंट हम कमा लेंगे, और तेरी घिनौनी साजिश जो है ना, माल सस्ते में बेच के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद करना, वो भी नहीं होने देंगे। It is applicable when the article is imported as less than nominal value. Less than value. Foreign seller dump good into the market at less than sell price in the market or less than cost. बेटा कॉस्ट से कम में बेचा तो भी डंपिंग है, अपने देश की सेलिंग प्राइस से भी कम में बेचा वो भी डंपिंग है। समझा? नेक्स्ट है बेटा सेफगार्ड ड्यूटी। बेटा सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भैया चाइना ना जेन्युइनली वो चीज मेरे देश में 100 में दे सकता है। चाइना गुड्स बनाता है 50 रुपए में, अपने यहां बेचता है 90 रुपए में, और मेरे यहां बेच रहा है 100 रुपए में। तो बेटा क्या वो कॉस्ट से भी कम में सेल कर रहा है? ना। क्या वो अपने देश की सेलिंग प्राइस से भी कम में सेल कर रहा है? ना। तो बेटा डंपिंग तो कर नहीं रहा है। जेन्युइनली वो मेरे को बेच रहा है 100 रुपए में, पर बेटा मेरे यहां यही गुड्स 150 में तैयार होता है। मैंने मेरी इंडस्ट्री को जाके बोला देखो चाइना से गुड्स 100 में आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री बोलती डंपिंग कर रहा होगा साला। हमने बोला नहीं, डंपिंग भी नहीं कर रहा, हमने चेक कर लिया। नहीं, बोले हम 150 से कम में प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, आप चाहे तो हमारी कॉस्ट शीट चेक कर लो। तो बोलते हाँ हम समझ रहे हैं, चाइना के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है चाइना के पास, इसके चलते वो सस्ते में बेच पा रहा है। ठीक है, तो फिर ये बोलते हैं हमको आप सेव करो भैया, कैसे तो भी सेव करो। तो इस बार चाइना डंपिंग नहीं कर रहा, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी तो नहीं लगाएंगे, पर इस बार एक और ड्यूटी लगा देंगे सेफगार्ड ड्यूटी के नाम से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए। समझ में? नेक्स्ट है बेटा सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये और खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये और खतरनाक कॉन्सेप्ट। काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखना क्या होता है। बेटा लेट्स से एक यूनिट है चाइना के अंदर जो सिर्फ EOU है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये मात्रा एक्सपोर्ट करता है। इसका एकमात्र काम क्या है? इट विल बी हेल्ड फॉर साउथ स्टूडेंट। Oh, I haven't planned this in English. So this is for my regular students. So next time definitely I'll consider taking it in English. Okay. So here we are.
चाइना, चाइना में एक फैक्ट्री है बेटा जो EOU है, टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। एक कारखाना है बेटा जो टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। ये क्या करता है बेटा, गुड्स बनाता है 100 रुपए में, राइट, सिंपल है, और इंडिया में बेचने की कोशिश करता है 70 रुपए में। हाय दिव्या, बेटा क्या डंपिंग में फंस जाएगा ये? सोच के बताना, क्या ये डंपिंग में फंस जाएगा? मैं तो कहूंगा हाँ, ये डंपिंग में फंस जाएगा। तो बेटा क्या बोलता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एक काम करो, आप मुझे ना 40 रुपए की सब्सिडी दे दो। गवर्नमेंट बोलते ठीक है, तुम्हारा मेरा एक ही उद्देश्य है, मिलके दूसरी कंट्री की वाट लगानी है, बर्बाद करना है, मैं तुम्हें 60 रुपए की सब्सिडी दे दूंगा। तो बेटा जैसे ही इसने 100 रुपए में 40 रुपए की सब्सिडी को लेस किया, इसकी कॉस्ट हो गई 60। अब तो ऐसा क्लियर कट नजर आ रहा है ना कि 60 रुपए का माल 70 रुपए में बेच रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लग सकती। हमने बोला कि भैया तुम तो डंप कर रहे हो, वो बोल रहे डंप कैसे कर रहे हैं, 60 रुपए में पड़ रहा है हमको माल, गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम से भी कुछ नहीं लगा सकते थे। तो एक नई ड्यूटी आई बेटा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब बेटा जितना आप लोगों को सब्सिडी मिला है उतना हम ड्यूटी आप पे लगा देंगे, जानबूझ के ड्यूटी लगा देंगे, फिर देखेंगे डंपिंग हो रहा है या नहीं, और फिर डंपिंग हो रहा है तो और एंटी डंपिंग ड्यूटी पे लगाएंगे, तो CVD भी लगेगा, एंटी डंपिंग भी लगेगा। Countervailing duty levied on import from any country which pays directly or indirectly any subsidies to manufacturing unit. ठीक है, एक बार यहां से यहां तक देख लो, प्रोहिबिटिव से, सॉरी 7 से लेकर 12 तक देख लो। ओके दिव्या, गुड नाइट। वैसे मैं इसके ऊपर ना बहुत बड़े बड़े सेशन ले सकता हूँ, मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, पर इतना कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या ही लूँ मैं। बहुत सारे बेटा, चाइना टॉयज़ पर करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर करता है, मेडिसिनल आइटम पे नहीं करता है, क्योंकि मेडिसिनल की तो वैसे भी डिमांड है। और मेरे को तो जहाँ तक पता है बेटा, ये प्लास्टिक वगैरह, क्रॉकरी वगैरह के माल में करता है, प्लास्टिक आइटम में बहुत करता है। उसको जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है वहाँ वो करता है। चलिए, फिर बेटा एक टैरिफ आता है MFN टैरिफ। तो आपको पहले हायरार्की समझनी पड़ेगी। कहाँ गया?
थोड़ी सी हायरार्की समझनी पड़ेगी बेटा आप लोगों को। देखिए कुल मिला के 190, 193, 205 कंट्रीज़ हैं। हम अभी पकड़ते हैं डिटेल के लिए 193 कंट्रीज़, क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी 193 कंट्रीज़ को ही कंसिडर किया जाता है। कुछ कंट्री हैं जो ट्रेड नहीं करती है, वैटिकन सिटी वगैरह टाइप, कहने को तो कंट्री है पर ट्रेड नहीं करती, वैसी कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करते। तो कोई बोलते हैं 205 कंट्री, कोई बोलते हैं 193 कंट्री, वी आर टेकिंग 193 कंट्री। बट अब ये जो 193 कंट्रीज़ है ना, इसके अंदर जिनके साथ जो मेरे लिए खास हैं, जो नेशन मेरे से खास हैं, उन्हें मैं MFN का दर्जा देता हूँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी ये मेरे खास हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो रहते हैं नॉन MFN, वो नॉन मोस्ट फेवर्ड नेशन रहते हैं। ठीक है, 180 भी बोलते हैं। अब वो क्या डिटेल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कंट्रीज़ को ऊपर नीचे करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी करते हैं। तो बेटा देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जो मेरे लिए खास हैं, मैं उन्हें MFN का दर्जा देता हूँ। जैसे पाकिस्तान को मैंने नॉन MFN में डाल दिया, वो मेरे लिए खास नहीं है, MFN आता है। बेटा MFN का मतलब है कि मैं इनको प्रेफरेंशियल रेट लगाऊंगा, मैं इन लोगों को नॉन MFN के कंपैरिजन में कम रेट लगाऊंगा। क्या रेट लगाऊंगा बेटा? कम रेट लगाऊंगा। ठीक है, अब बेटा MFN में से भी बहुत सारे ऐसे नेशंस रहते हैं जो मेरे लिए प्रेफरेंशियल रहते हैं और एक रहते हैं नॉन प्रेफरेंशियल। यानी बेटा लेट्स से मैंने बोला 193 में से 150 ऐसी कंट्री हैं जो मेरे करीब हैं, तो ये हो गई MFN। इनको रेट से मैं रेट लगाऊंगा 20%, नॉन MFN वाले को तो लेट से बेटा 30% रेट लगाऊंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब बेटा ये MFN में जो 20% लगाऊंगा, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेफरेंशियल रहती है, तो मैं उन पे प्रेफरेंशियल टैरिफ लगाऊंगा। मैं बोलूंगा भैया तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ही खास हो, अजीज हो, 15%। ठीक है, अब 15% हो गया, मतलब बेटा नॉन MFN का रेट सबसे ज्यादा, MFN वालों का 20 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें और कम रेट लगाया जा सकता है। ठीक है, मान लो बेटा इंडिया और श्रीलंका ने एक रेट डिसाइड कर लिया 17%, तो इसे बोला जाएगा बाउंड टैरिफ। अब इनके बीच में बाइंडिंग हो गई है। और बेटा एक्चुअली में इंडिया ने लेट से 12% लगाया, तो इसे बोला जाएगा अप्लाइड टैरिफ। जो लगाया है एक्चुअली उसे बोलते हैं अप्लाइड, जो तय किया गया था वो था बाउंड। बेटा जो अप्लाइड है वो बाउंड से ज्यादा नहीं हो सकता, बाउंड से कम ही हो सकता है, बाउंड जितना ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हायरार्की समझनी पड़ेगी। जो मेरे बिल्कुल अजीज नहीं है उन्हें नॉन MFN लगाऊंगा, नॉन मोस्ट फेवर्ड नेशन, हाईएस्ट रेट। फिर उसके बाद जो नॉन MFN है उसको छोड़ के सभी MFN हो जाते हैं, मैक्सिमम 20% लेट से डिसाइड कर दिया। अब इसमें से भी और जो मेरे लिए बहुत करीब है, जिनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है, बेटा उन लोगों को प्रेफरेंशियल टैरिफ लगाऊंगा लेट से 15%। अब इनके साथ जो टैरिफ तय कर लिया गया है लेट से 17%, तो ये बाउंड टैरिफ है एग्रीमेंट के थ्रू। और बेटा जो एक्चुअल में लगाया गया है वो है अप्लाइड टैरिफ। पढ़िए, MFN, most favored nation. Most favored nation are the country promised to impose on import from other member of WTO. यानी बेटा जो नॉन MFN है उनको छोड़ दो, उसके अलावा आपस में ये लोग 20% रेट चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रेफरेंशियल, कंट्रीज प्रॉमिस टू गिव अनदर कंट्री प्रोडक्ट लोअर देन MFN। देखो MFN से भी कम, सबसे बड़ा नॉन MFN, उसके बाद MFN। अब बाउंड टैरिफ, बाउंड यानी जो अग्री कर लिया है आपने, इज द टैरिफ विच ए WTO मेंबर बाइंड इटसेल्फ विथ लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज बियॉन्ड सर्टेन लेवल। और अप्लाइड टैरिफ मतलब एक्चुअली जो चार्ज किया है आपने। ये है टैरिफ मेजर्स।
हाँ, प्रेफरेंशियल तो MFN से भी कम होगा। ठीक है, तो एक बार ये हायरार्की देख लीजिए, नॉन MFN, MFN, प्रेफरेंशियल, बाउंड, अप्लाइड। चलो आगे बढ़ते बेटा, नॉन टैरिफ मेजर। तो हुआ यूं कि मसला रेस किया गया भैया कि ये कंट्री मेरे को बहुत टैरिफ चार्ज कर रही है, ये मेरे गुड्स आने नहीं दे रही है। और बेटा WTO में बात गई, WTO ने एग्रीमेंट उठाकर देखा, हाँ भैया तुम तो बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हो। इंडिया बोलती है अब तुम लोगों को तो पता ही है कि हम इंपोर्ट रोकना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम ऑन द फेस ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग इस तरीके से टैरिफ मेजर नहीं ले सकते कि आप इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हो। एड वेलरम, स्पेसिफिक, मिक्स्ड, कंपाउंड, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, और भी न जाने एंटी डंपिंग ड्यूटी, कितनी ड्यूटीज़ लगा रहे हो। MFN के रेट, प्रेफरेंशियल रेट, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इंडिया मनी मन सोचता है कि भैया ये तो मेरे को टैरिफ का रास्ता रोक रहे हैं। टैरिफ से मेरे दो फायदे हो रहे थे, एक तो रेवेन्यू रेज हो रहा था और दूसरी बात इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। अब क्या करें, अगर मैं टैरिफ कम कर दूंगा तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, मतलब दोनों ही नुकसान हो जाएंगे। क्या करें क्या करें क्या करें। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, टैरिफ मेजर हटा देते हैं, नॉन टैरिफ मेजर लगा देते हैं। क्या सोचा बेटा, टैरिफ मेजर हटा देते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स लगा देते हैं। नॉन टैरिफ मेजर मतलब ऑर्डिनरी कस्टम ड्यूटी, टैक्सेशन को छोड़ के जो ड्यूटीज लगाई जाएगी उसे बोला जाएगा, सॉरी, ऑर्डिनरी कस्टम ड्यूटीज वगैरह को छोड़ के जो कोई प्रोसीजर किया जाएगा जिससे इंपोर्ट अगर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है, तो नॉन टैरिफ मेजर है। तो बेटा देखिए, उद्देश्य वही है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है, पर इस बार टैरिफ का सहारा नहीं ले सकते, इसलिए इसको नाम दे दिया नॉन टैरिफ मेजर, NTMs। आर द पॉलिसी मेजर अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ that can potentially have impact on international trade in goods, changing the quantity traded or price or both. MTM, non-tariff measure, includes regulations that restrict trade or that facilitate higher trade. मतलब बेटा जो हमारा उद्देश्य था हम टैरिफ के थ्रू पूरा कर रहे थे, अभी नॉन टैरिफ के थ्रू करेंगे। रिश्ता वही, सोच नहीं। तो बेटा देखिए, नॉन टैरिफ मेजर यानी नॉन टैरिफ मेजर में क्या होगा, वही चीजें हैं बेटा, या तो ट्रेड रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या तो ट्रेड प्रमोट किया जाएगा, पर टैरिफ के थ्रू नहीं, नॉन टैरिफ के थ्रू। बोलो यहां तक समझा आपको? जी ठीक है, तो नॉन टैरिफ मेजर समझा। अब बेटा नॉन टैरिफ मेजर के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर आता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे बेटा, नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होगा। बेटा नॉन टैरिफ मतलब जहां पर टैरिफ की बात नहीं होगी, और बैरियर मतलब जो रोकेगा। बेटा नॉन टैरिफ मेजर के अंदर दोनों बातें आ रही थी, रिस्ट्रिक्शन भी आ रहा था, प्रमोट भी बात कर रहा था। लेकिन जब मैं सिर्फ नॉन टैरिफ बैरियर की बात कर रहा हूं, मतलब ये सिंपली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू इंपोर्ट कम होगा, रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट। मेजर्स में दोनों आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, दोनों तरफ जाएगा, वो दो तरफा है। लेकिन बेटा बैरियर सिर्फ एक तरफा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब कैसे कैसे रोकेंगे, टेक्निकल मेजर से। हम यहां पे टैरिफ मेजर यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, टेक्निकल मेजर यूज करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। बेटा जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इसको फुलफिल करने के लिए हमने पहला रास्ता कौन सा अपनाया था बेटा, टैरिफ मेजर। पर ये क्या बोलते हैं, नहीं नहीं टैरिफ मेजर नहीं कर सकते, तो मैंने बोला ठीक है नॉन टैरिफ मेजर लेता हूं।
अब नॉन टैरिफ के अंदर भी बेटा हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, नॉन टैरिफ बैरियर, यानी प्रमोशन वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम पढ़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बेटा टैरिफ का रास्ता जब नहीं यूज कर सकते तो नॉन टैरिफ यूज करेंगे। नॉन टैरिफ में अभी हम पढ़ रहे हैं रोकने का तरीका। अब इसमें भी दो तरीके हैं, एक है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल। बेटा टेक्निकल मतलब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, साइज, शेप, कंपोनेंट पे रोक देंगे। और बेटा नॉन टैरिफ में, नॉन टैरिफ नॉन टेक्निकल में क्या करेंगे, बोलेंगे ये प्रोसीजर करो, वो प्रोसीजर करो, इतना करेंसी डिपॉजिट करो, ये करो, वो करो, तुम्हें प्रोसीजर्स में अटका देंगे। तो हायरार्की में तुम कहां बैठे हो देख लो। जो भी अपना प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसके लिए या तो टैरिफ अपनाओ या तो नॉन टैरिफ अपनाओ। नॉन टैरिफ में बेटा प्रमोट भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। हम प्रमोट वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम रिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें दो हो सकते हैं, एक हो सकता है टेक्निकल और एक हो सकता है नॉन टेक्निकल। कहां बैठे हैं अपन, यहां पर आए हैं अभी। पढ़िए बेटा, टेक्निकल मेजर यानी नॉन टैरिफ बैरियर में टेक्निकल मेजर। टेक्निकल मेजर मतलब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब। It includes product specific properties such as characteristic of product, technical specification and product process. For ensuring the product quality, food safety, environmental protection, national security, protection of animal and plant health. यानी कि बेटा हम उसकी टेक्नैलिटी में अटका देंगे उसको। हम उसे बोलेंगे नहीं ये शेप का नहीं चाहिए, हम उसे बोलेंगे इतनी क्वांटिटी का, इतना बड़ा पैकेट नहीं चाहिए, छोटा पैकेट करो। हम बोलेंगे मैंडेटरी लेबलिंग करके आओ। हम बोलेंगे इसके अंदर क्या बोलते हैं बीफ वगैरह नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे इसके अंदर ये वाले ऑब्जेक्टिव, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो देश में बैन है हमारे। मतलब बेटा यहाँ पर इंपोर्ट को रोकने का पहला तरीका क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। पर वो जब मना कर दिया गया मुझे, तो मुझे नॉन टेक्निकल मेजर यूज करने पड़े। नॉन टेक्निकल मेजर में नॉन टैरिफ मेजर यूज करने पड़े। नॉन टैरिफ में नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर में टेक्निकल है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है बेटा टीबीटी। इसमें सबसे पहला आता है टीबीटी, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। सर क्या क्या करेंगे इसमें, इट हैज अ मैंडेटरी स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल रेगुलेशन दैट डिफाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट अ प्रोडक्ट शुड हैव सच एज साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, प्रोडक्ट मेथड। मतलब बेटा उसका एग्जाम्पल दिया है, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। तुम्हें बोलेंगे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, मेथड ऐसा होना चाहिए, पैकिंग, लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए। समझ पा रहे हो हम कहाँ पे हैं हम लोग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए टैरिफ मेजर तो अपना नहीं पाए, तो नॉन टैरिफ मेजर। नॉन टैरिफ मेजर में नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर बेटा टेक्निकल बैरियर पढ़ रहे हैं। टेक्निकल बैरियर मतलब वही प्रोडक्ट की साइज, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, रेगुलेशन, लेबलिंग, रिक्वायरमेंट, ये सब चेक करें। ठीक है, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ठीक है, और दूसरा जो आ सकता है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एसपीएस, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर। ठीक है, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर का मतलब क्या होता है बेटा, अभी ना हम लोग प्रोडक्ट को इस रीजन से रिजेक्ट करेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे अभी चाइना से कोई गुड्स आ रहे होंगे ना, तो हम ये रीजन से रोक देंगे कि भैया तुम्हारी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में कोविड बढ़ने के और चांसेस है। हम ये मेजर इसलिए ले रहे हैं, हम यहाँ पर तुम पे टैरिफ नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम तुम पे कस्टम ड्यूटी चार्ज करके रोक नहीं रहे हैं, हम तुम पे कोई टेक्निकल बैरियर भी नहीं लगा रहे हैं। बस इतना बोलना चाहते हैं, अभी तुम्हारे देश से प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो हमारे यहाँ पे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल हेल्थ को नुकसान हो सकता है। एसपीएस मेजर्स आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट फ्रॉम द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडिटिव्स, पेस्ट, कंटामिनेशन, टॉक्सिन और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। दिस इंक्लूड्स बैन, prohibition of import of certain item, all measure governing quality and hygiene requirement, production process and associated compliance। मैंने बोला समझने के लिए आसान है पर है बहुत बड़ा ये। बहुत बहुत ज़्यादा है बेटा। अभी तो आप देखो आप कहाँ तक हो।
वी आर हियर, हमने यहाँ से शुरू किया इस पेज से, येलो वाले पार्ट से यहाँ पर है, बहुत है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है। तो ये आ सकता है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बढ़ते हैं आगे बेटा। अब बेटा अभी तो टेक्निकलिटी के कारण रोक रहे थे, अब नॉन टेक्निकलिटी पर रोकेंगे। नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ के अंदर नॉन टेक्निकल। हायरार्की में समझो कहां पर पहुंचे अपन, हायरार्की में बेटा हम लोग पहुंचे हैं यहां पर। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसे फुलफिल करने के लिए टैरिफ मेजर। जब टैरिफ मेजर यूज़ नहीं कर सकते तो नॉन टैरिफ में गए। नॉन टैरिफ में बेटा प्रमोशन वाला पार्ट हम देख नहीं रहे, हम सिर्फ बैरियर वाला पार्ट देख रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में टेक्निकल देख लिया बेटा, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड और सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर। अब जाते हैं नॉन टेक्निकल, मतलब बेटा नॉन टैरिफ मेजर के अंदर, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट में जा रहे हैं। पढ़ते हैं। नॉन टेक्निकल रिलेटेड टू ट्रेड रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल शिपिंग रिक्वायरमेंट, कस्टम फॉर्मेलिटी, ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसी। बेटा आपको बोलेंगे आपको जापान से गुड मंगवाना है तो आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। आपको अगर जापान से गुड्स मंगवाने हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके रहना पड़ेगा और वहाँ की क्वालिटी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा। आपके गुड्स के सैंपल जो है हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। कुल मिला के बेटा आपको प्रोसीजर कंप्लायंस में अटका देंगे। तो यहाँ पर ना ही आप पे टेक्निकल रीजन से रोका है, बोले नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट तो सही है, कुछ नहीं है उसके अंदर, क्या ही मंगवा रहे हो, कैलकुलेटर मंगवा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं, मंगवाओ, लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज है। तो देखो बेटा नॉन टैरिफ नॉन टेक्निकल में आए हैं। अब इसमें बेटा हार्ड मेजर लगाए जाते हैं। हार्ड मेजर मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण तुम्हारा प्राइस बढ़ जाए। सर कैसे प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ना तो कस्टम ड्यूटी है, नहीं, वो तुमको बोलेंगे भैया फॉरेक्स रिक्वायरमेंट है, फॉरेक्स एडवांस में दो चार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर आओ, तो बेटा तुम्हारा प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो फिर क्वांटिटी ट्रेडेड कम कर देंगे। वो बोलेंगे इतनी इतनी क्वांटिटी मंगवानी है तो एक डिपार्टमेंट की परमिशन, ज़्यादा मंगवानी 4 डिपार्टमेंट की परमिशन। क्यों चाहिए तुमको, तुम्हें जिस कस्टमर को माल बेचना है उसकी रिक्वायरमेंट लेकर आओ, उससे साइन लेटर लेकर आओ, अटका देंगे तुम्हें पूरा। सो बेटा नॉन टेक्निकल में हार्ड मेजर आएगा जो प्राइस और क्वांटिटी को रोक देता है। फिर बेटा थ्रेट मेजर में आता है कि तुमको धमकी देते हैं कि ठीक है तू मंगवा तो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ गलती दिखी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी लगा दूंगा। ना ही तुम पे अभी तक टैरिफ लगा है पर तुमको बोला है कि लगा देंगे, ये थ्रेट मेजर होता है। और एक होता है अदर्स। अदर्स में आता है बेटा प्रोसीजरल ऑब्स्ट्रैकल। अदर्स में आता है बेटा प्रोसीजरल ऑब्स्ट्रैकल। तुम्हें गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट में चक्कर कटवाएंगे। कई बार इंपोर्टेड रिलेटेड मेजर इंपोर्टिंग कंट्री पे लगा देंगे, कई बार एक्सपोर्टिंग कंट्री जापान पे लगा देंगे, यानी कुछ भी करेंगे रोकने की पूरी कोशिश है। आप समझिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, रोकना है एट एनी कॉस्ट। तो चलो ये क्लियर हो गया क्या बेटा। नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर क्या करेंगे बेटा, तुम्हें शिपिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेड रिक्वायरमेंट, कस्टम फॉर्मेलिटी, टैक्स पॉलिसी, रूल्स, DTAA का सर्टिफिकेट लाओ बोलेंगे। हार्ड मेजर होंगे जिसके थ्रू प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल कर देंगे। थ्रेट मेजर के थ्रू एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात करेंगे। अदर मेजर में इंपोर्टिंग कंट्री पे कभी लगाएंगे, कभी एक्सपोर्टिंग कंट्री, या फिर POs में अटका देंगे, प्रोसीजरल ऑब्स्ट्रैकल में। करती है ना बेटा, इसलिए तो VER एक कॉन्सेप्ट आया है जो तुम बोल रहे हो ना सर ये सारी गंदी प्रैक्टिसेस चालू है।
इसी के चलते हुए एक कॉन्सेप्ट आया है, कहाँ गया, VER, ये रहा VER, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। बताऊंगा, जो तुम समझ रहे हो ना पहले पूरी तरीके से समझ लो, जो तुम्हारी क्वेरी है बिल्कुल सही है, दूसरी कंट्री भी सेम करेगी, तो इसके चलते हुए बेटा फालतू के रिटेलिएटरी अटैक चालू होंगे, ये इस पे वार कर रहा है, ये इस पे पलटवार कर रहा है, यही फालतू के गेम चालू हो जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए सब किया जाएगा। बढ़ू मैं आगे, ठीक है। अब बेटा टाइप ऑफ नॉन टेक्निकल मेजर, नॉन टेक्निकल मेजर अभी हम कहां पर है समझ गए ना, नॉन टैरिफ मेजर के अंदर, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर, नॉन टेक्निकल मेजर में टाइप्स बता रहे हैं उसके। इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट कोटा मतलब बेटा इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड आप मंगवा नहीं सकते। इंपोर्ट कोटा इज अ डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन विच स्पेसिफाइड दैट only certain physical amount of goods will be allowed to enter, only certain amount, only certain, कहां गया, only certain physical amount of good, quantitative restriction है बेटा। नेक्स्ट बेटा बाइंडिंग कोटा और नॉन बाइंडिंग कोटा दोनों कट कर दो, ये तो सिर्फ देने थे इसलिए इन्होंने दे दिए, कट कर दो, इसको कोई सेंस भी नहीं है, समझने के लिए भी नहीं है। एब्सोल्यूट कोटा समझिए बेटा, एब्सोल्यूट कोटास, एब्सोल्यूट कोटास का मतलब क्या होता है कि बेटा आपको एक रिस्ट्रिक्शन तो तय करके दे दी जाएगी, 1000 टन, 1000 टन इतना मंगवा सकते हो। कहां से मंगवाना है, 1 जनवरी को ही सब मंगवा लेना है, या हर रोज थोड़ा थोड़ा मंगवाना है, या साल के आखिरी दिन मंगवाना है, कौन सी कंट्री से मंगवाना है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंपोर्ट कोटा, सॉरी एब्सोल्यूट कोटा का मतलब होता है परमानेंट नेचर की बाइंडिंग क्वांटिटी रहती है, मतलब आपको स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ही मंगवानी है। सुनना आ गया, समझ में आ जाएगा। विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंपोर्ट कैन टेक प्लेस एनी टाइम ऑफ द ईयर, नो कंडीशन इज अटैच्ड टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। लो मतलब बेटा यहां पर आपको कोटा तो लगा दिया, इतनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो, पर ये साल भर में कभी भी करना है, पहले दिन करना है, साल भर करते रहना है, इसके बियॉन्ड मत जाना। फिर बेटा टैरिफ रेट कोटा आता है। टैरिफ रेट कोटा एक प्रकार का ऐसा कोटा है जो एब्सोल्यूट कोटा जैसा ही है, पर बेटा यहां पर कंट्री ऑफ ओरिजिन भी डिसाइड करता है कि ये कंट्री से नहीं मंगवाना। ठीक है, कहाँ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, समझ में आ गया। यूनिलैटरल कोटा मतलब एक ही कंट्री लगाती, इंपोर्टिंग कंट्री इंडिया बस लगाएगी। बायलैटरल कोटा इंडिया भी लगाएगी, चाइना भी लगा देगी। यूनिलैटरल कोटा कंट्री यूनिलैटरली फिक्सेस अ सीलिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। बायलैटरल मतलब दोनों कंट्री फिक्स कर देती है, भैया हम भी नहीं लेंगे तुमसे इतना माल। नेगोशिएशन बिटवीन इंपोर्टिंग कंट्री एंड पर्टिकुलर सप्लायर और बिटवीन इंपोर्टिंग कंट्री एंड एक्सपोर्ट ग्रुप विद इन द सप्लायर। एक्सपोर्ट कोटा, इंपोर्ट पे लिमिट लगाई थी, उसी तरीके से एक्सपोर्ट पे भी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है एक्सपोर्ट में, सर्टेन गुड्स है बेटा डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे, अगर आप सारा का सारा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट पे भी कोटा लगाए जाते हैं। अ कोटा ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंट्री इफ द गवर्नमेंट फील दैट एक्सपोर्ट इज इन एक्सेस विल अफेक्ट द डोमेस्टिक कंज्यूमर। बस यहीं तक करते हैं, बचा हुआ कल दोपहर में लूंगा मैं, क्योंकि तो बहुत है, सारा तो अभी कंप्लीट होगा नहीं, आपको सुबह भी आना है। बहुत है अब इसमें, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टीबीटी, बहुत सारा है, बचा हुआ कल करेंगे। कल दोपहर में 2:30 बजे लेने का सोच रहा हूँ।
पर अभी तक लिंक क्रिएट नहीं हुई है। अगर लिंक नहीं क्रिएट हुई है तो मैं शाम को या रात को ले लूँगा। रात को भी लेने के चांसेस हैं, हो सकता है मैं रात को ले लूँ क्योंकि सैटरडे को कोई क्लास ही नहीं है, तो कल रात को ही रखते हैं इस टाइम पे, राइट। 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, 1-1.5 घंटे में। चलो देन दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। पढ़ के आइएगा ये सारा ऊपर ऊपर से, ठीक है। 10:30 कर